Yes, bete. In 13.3, here is question number 1. Write the expanded form. Whichever number is given to you, जो भी number given है आप उसको पहले expanded form में लिख लो. ठीक है, ये मैंने expanded form लिख दी. This is 2 multiply 1 lakh, then 7 multiply 10,000, then 9 multiply 1,000, 4 multiply 100, 0 multiply 10, and 4 multiply 1. Now I will write my answer in exponential form. वो कैसे लिखेंगे? जहां पे ये जीरो है इनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. दिस इज 10 पावर 5. It can be written as 10 power 4. This is 10 power 3, 10 power 2, 10 power 1, and 1 I will write again in power of 10. अब 1 को मैंने 10 की फॉर्म में लिखना है, तो अगर मैं ऊपर 0 लिख दूं, and you know any number raised to power 0 is always 1. तो जैसा मैंने यहाँ पूरा यहाँ 10 चलाया है इक्वेशन में, वैसे ही मैंने अपने एक्सप्रेशन में लास्ट 1 को भी रिप्लेस कर दिया एज 10 पावर 0. सेम वे आई हैव डन हियर. यहाँ पे 6 zeros थी 3 के साथ, तो मैंने 6 5 4 3 2 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के लास्ट में जहाँ 1 था, this is 4 into 1, so I will write 4 multiplied 10 power 0. same way यहाँ 2 के साथ 6 digits हैं, so मैंने 6 से start करके जैसे अभी आंसर किया है बानी ने and Manveer ने, like that I have written on the board. Thank you Bani and Manveer. Your concepts are clear, I think, because many of you were raising your hand. That means this question must be clear. Kindly complete it so that I can show you other question. Two parts we will be doing as homework, part D and E. That we will not do. Now see, this is question number 2, and here expanded form is given to you. From expanded form, you will find the number. What is the number? Okay. So अगर आपको directly समझ आ रहा है directly करो, तो otherwise इसको बंद कर दो. This is 8 multiply 10,000, 6 multiply 1,000, 0 multiply 100, 4 multiply 10, and 5 multiply 1. This is 80,000 plus 6,000 plus 0 plus 40 plus 5. And your answer is 86045. 8 with 4 digits. 8 with 4 digits. Like this we will be doing. You can raise your hand and Preeti ma'am will unmute you for the second part if someone wants to answer. Raise your hand for second part. Ma'am, kindly unmute Sahajveer. We will be doing only 2 parts. C and D part again for your homework. 2 parts first के और 2 parts second के आप homework में लिखते हैं. Yes. One second, let me write. How many zeros? How many zeros, bete? 4 with how many zeros? Yes, 5. Plus 5 into? Yes. 1,000. Very good. Next. Next. Yes. Next. 2 multiply? Yes, 1. And it becomes 4 lakh. Yes, answer is 405,303. Very good, Tejas. You can mute yourself, bete. Mute कर लीजिए आप. Very good, Tejas. I think concept is clear.
जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया, आपने पूरा लिख के करना है, अगर ऐसे वो भी कर सकते हो, अगर समझ आ गया डायरेक्टली भी लिख सकते हो। दिस डिपेंड्स ऑन द मार्क्स। अगर ये 2 मार्क में आएगा क्वेश्चन सपोज, तब आप पूरा लिख के करना, ठीक है। अगर आपको 1 मार्क में पूछ रहे हैं, देन आप सीधा आंसर लिख दो। सेम वे अगर ये क्वेश्चन है फाइंड द नंबर, तो आपको इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये सिर्फ 1 मार्क में पूछ रहे हैं, यू कैन जस्ट राइट आंसर। अगर ये 2 मार्क में आ रहे थे ना, आप प्रॉपरली सॉल्व कर लेना। Okay, both ways you can do it. It depends on marks, how many marks it is asked. 2 mark में है तो proper, अगर 1 mark में है that is direct answer you can write. Is it okay? Next 2 parts are for your homework. Let us do question number 3. Finish this because that is the main concept of this exercise. You are again going to learn something new. So इसको पहले खत्म कर लो so that I can rub the board. Be quick. हाँ जी बोलो। यस कर सकते हैं। यस हाँ जी, कटिंग भी कर सकते हैं। जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ साथ में बोलती हूँ यू कैन ऑल्सो कट। ओके व्हाट I will explain at the end. Betty, I told you to send a message if you have any doubt. Between the class, I will not solve the doubt of only one student. Wait. Betty, kindly keep your mics on off mode because recording is going on. Ma'am, please don't allow. Yes, beta. Listen, now is the next question. What is that? Expressing large numbers in standard form. Now you are going to learn main concept of this exercise. ये expanded form ही तो 1 mark में आ जाएगा। ये जो आपने number find करना है, this is for 1 mark. But you also get a very important question from this exercise. And what is that? Convert the given number in standard form. Now what is that? अब आपको जो भी number given है, you will convert, you will write that in standard form. What is standard form now? When a number can be expressed as a decimal number. कोई number जो given है वो कहाँ express हो जाए, वो decimal number में हम लिख सके और साथ में including इसके साथ क्या है, multiplied by a power of 10. यस बेटे, अब कोई भी नंबर आप इस तरह से लिख सकते हो, किसी भी बिगर नंबर को, लाइक आपको मैंने फर्स्ट डे बताया था, देयर इज वेरी लार्ज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, बिटवीन सन एंड मून, बिटवीन मून एंड अर्थ, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. So in order to measure those distances, when we try to write or read that, we mostly use, हम उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं उनको लिखने के लिए. अगर आप अपनी बुक्स पढ़ोगे जब आप साइंस की, तो उसमें आप देखना
यू विल फाइंड एंड टेल मी, आप उसमें देख के मुझे बताना कि मैम हमारी साइंस की बुक में ऐसा लिखा है या एसएस की बुक में लिखा है डिस्टेंस स्टैंडर्ड फॉर्म में। यू विल सेंड मी अ मैसेज, आप फोटो खींच के उसकी भेजना, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आपकी एसएस और साइंस की बुक में लिखे होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डिस्टेंसेस हैं। अब वो कैसे कन्वर्ट करके लिखते हैं, इतने बड़े नंबर को डेसिमल नंबर में बना देना। एंड यू नो दैट डेसिमल नंबर बहुत छोटा नंबर होता है। डेसिमल नंबर में एक बहुत बड़े डिस्टेंस को कैसे लिख लेते हैं, टुडे यू आर गोइंग टू लर्न दैट। एक बिगर नंबर को छोटे से नंबर में कन्वर्ट कर देना जो इजीली रीडेबल हो और वो डेसिमल नंबर भी बन जाए, ठीक है। तो ये जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, एक डेसिमल नंबर होगा, साथ में 10 की पावर समथिंग होगी। एक तो डेसिमल नंबर होगा लाइक 5.7 और साथ में 10 की कुछ पावर होगी, 30, 21, 19, 16। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं जब एक डेसिमल नंबर और साथ में मल्टीप्लाइड बाय अ पावर ऑफ 10, 10 की कुछ पावर मल्टीप्लाइड हो। ओके, अब इसके लिए 3-4 कंसेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं बिफोर डूइंग द क्वेश्चन। ये अगर कंसेप्ट समझ नहीं आए तो फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। Now what is that? First concept, if you write 7, that means that is 7 by 1. अगर किसी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, that means there is 1 always, you know that. Same way, अगर 7 एक full number है, जैसे आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो, सेम वे आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो, 7 डॉट्स किसी भी नंबर को, any whole number you can write like this, because अगर डेसिमल नंबर से बाहर चला जाए और उसके पास सिर्फ जीरोस हो, कितने भी जीरोस हो, यहाँ चाहे 100 जीरोस आ जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सो एनी होल नंबर यू कैन राइट लाइक दिस, 7.0। दिस इज द सेकेंड कंसेप्ट। पहली चीज कि उसको आप होल नंबर जैसे 1 लगा के लिख लेते हो तो फ्रैक्शन बन जाता है। ऐसे भी कोई भी होल नंबर अगर आप डेसिमल के साथ 0 लगा के लिखते हो तो वो एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। दो चीजें पता लग गई। अब है थर्ड, किसी नंबर को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, दिस इज 7, उसी नंबर से डिवाइड कर दो, अगेन द नंबर इज सेम। तो अगर आप किसी नंबर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, चाहे वो 10 है, चाहे 15 है, चाहे 100 है, 1 लाख है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसी नंबर से डिवाइड कर देते हो तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो एनी होल नंबर यू कैन राइट लाइक दिस, जितना भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। मैथ्स में वैल्यूज चेंज नहीं होनी चाहिए। जब हम किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, उसकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी, बस उसको एक लिखने का ढंग है, उसको एक्सप्रेस करने का एक वे है जो हम सीखने लगे। उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। वो वैल्यू ये नहीं कि बिगर था तो अब डेसिमल नंबर में आके स्मॉलर बन गया, दैट इज नॉट स्मॉलर नंबर नाउ, दैट इज अनदर वे ऑफ राइटिंग दैट नंबर। ओके, सो अभी यहाँ मैंने क्या बोला, एक तो आप किसी फ्रैक्शन को जैसे लिख लेते हो किसी होल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में, वैसे ही किसी होल नंबर को डेसिमल में लिख लेते हैं। ऐसे ही किसी होल नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ये कंसेप्ट भी हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कि अगर आप, ये आपने 4th क्लास में भी पढ़ा था, 5th में भी पढ़ा और 6th में भी पढ़ा, ठीक है, कि जब डेसिमल की मूवमेंट होती है तो डेसिमल की मूवमेंट कैसे करवाते हो। अगर कोई नंबर है डेसिमल नंबर 10, चलो 1000 हम उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो जो डेसिमल है ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ये डेसिमल इधर मूव करेगा, कितना, 3 स्टेप्स, मीन 75। अब ये आंसर होगा, यहाँ था 3 स्टेप आगे जाएगा, 1, ठीक है। और जब आप डिवाइड करते हो किसी डेसिमल नंबर को तो फिर क्या होता है, फिर वो जो डेसिमल है वो बैक साइड मूव करेगा, इस आंसर में कि आपके 3 स्टेप पीछे जाएगा, 7500 यहाँ आ जाएगा, इधर था 1 2 3, तो ये 3 स्टेप पीछे आता है। तीसरा कंसेप्ट ये आपने याद रखना है, किसी भी नंबर डेसिमल नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या 10,000 से कर रहे हो, जितनी जीरोस हैं उतना ही डेसिमल प्लेस
फर्दर मूव कर जाएगा, डेसिमल नंबर फर्दर मूव करेगा राइट की तरफ, और जब डिवाइड करते हैं तो ये मूव करेगा बैक साइड। ये समझ आ गया? ये सारे कंसेप्ट क्वेश्चंस में लगेंगे, क्वेश्चन 2-3 लाइंस का ही है, बट वो समझने के लिए सब कुछ रिकॉल करवाना जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये भी समझ आ गया बेटे। अब आगे है कि अगर किसी नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हो, अब क्या होने वाला है। अभी ये मैंने आपको सारे कंसेप्ट बताए, अब एक एग्जांपल करके दिखाओ। ठीक है, here is one example. First example है, number is 576 with 6 zeros. अब इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर, ठीक है, 576 with 6 zeros. अब उसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए आपको, डेसिमल चाहिए यहाँ, ठीक है, यहाँ चाहिए डेसिमल एक डिजिट के बाद, ठीक है, क्योंकि जो डेसिमल की वैल्यू है, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप नंबर लिखो तो 1.0 से 10 के बीच में आना चाहिए, उसकी वैल्यू 1 से 10 में वेरी कर सकती है, तो मैंने 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे मेरे को आंसर बनाना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी इस क्वेश्चन में, मैं काउंट करूंगी कितने मेरे को स्टेप पीछे आना है, अदरवाइज किसी भी होल नंबर में, सपोज कि आपके पास होल नंबर है, वेट, एक सिंपल नंबर है, इसके साथ जीरो, 3 एक सपोज से दैट मींस इसको डेसिमल नंबर में लिखो, पहले ये बन जाएगा 3000000 विद डेसिमल। एक कंसेप्ट लगाया मैंने, किसी भी होल नंबर को आप डेसिमल नंबर बना दिया आपने, एंड में डेसिमल और जीरो लगा के, ओके। उसके बाद ये बना दिया, उसके बाद मैंने क्या कहा था कि आपकी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो उसी नंबर के साथ। अब आपने देखना है मैंने डेसिमल को कितना पीछे शिफ्ट करना है, मुझे डेसिमल चाहिए यहाँ 1 डिजिट के बाद, यहाँ डेसिमल चाहिए कितने बेसिस पीछे आ रहा है, 6 बेसिस पीछे आ रहा है, तो मैंने 10 और सॉरी 1 के साथ 0 लगाने हैं, नीचे भी और ऊपर भी, तो 6 zeros लग गए। ठीक है, ये अगला कंसेप्ट लगा दिया, किसी भी नंबर के साथ सेम नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ डेसिमल चाहिए है ना, यहाँ चाहिए ना डेसिमल, अब मैं क्या करना है, ये जब मैं इससे डिवाइड करूंगी तो ये डेसिमल जो एंड में था वो आगे चला जाएगा, पता हो जाएगा 3.12345 और रिमेनिंग आपके पास ये रहेगा। ठीक है, इतना है क्या, अब इसको लिखेंगे 3.0, डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो 10 6, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, आई विल रिपीट अगेन दिस ऑन मंडे, डोंट वरी, ये सिर्फ ये समझ लेना कंसेप्ट, ये इस कंसेप्ट में दोबारा नहीं बताऊंगी। एनी होल नंबर यू कैन राइट लाइक डेसिमल एंड जीरो, किसी भी होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से और डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम रहती है। 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जितने जीरोस हैं उतना डेसिमल आगे शिफ्ट होगा, डिवाइड करोगे तो पीछे। यही कंसेप्ट मैंने फर्स्ट एग्जांपल में लगाए हैं। अगेन आई विल रिपीट दिस ऑन मंडे बिकॉज टाइम इज वेरी शॉर्ट, वी आर अनएबल टू फिनिश दिस टॉपिक टुडे। ओके, अब कोई नंबर था यहाँ पे, इसके मैंने पहले एंड में डेसिमल और जीरो लगाई, अब मैंने देखा कि मेरे को ये डेसिमल कहाँ मूव करवाना है, मुझे 6 स्टेप्स पीछे जाना है, 6 स्टेप पीछे जाना है, तो मैंने 1 के साथ 6 जीरोस लगाई, उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि किसी भी नंबर को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। अब मुझे पीछे लेके जाना है, जब पीछे लेके जाना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने इन दोनों को यूज कर लिया, 3 ये जो नंबर लिखा हुआ है 30 लाख को और 10 लाख को डिवाइड कर दिया, ताकि ये जो डेसिमल है ये यहाँ पहुंच जाए। जब डेसिमल यहाँ पहुंच गया तो रिमेनिंग नंबर ये था, इसको मैंने 10 की पार्ट्स में लिख दिया। ठीक है, अगेन बेटा आई विल रिपीट ऑन मंडे, डोंट वरी, ये कंसेप्ट फिर से रिवाइज होगा, बट ये जो चीजें बताई हैं ये रिवाइज नहीं होंगी। नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज ओनली, this is just an example, you can note it down or you can keep in mind, but this thing you should note in your notebook, क्योंकि ये सब चीजें एक क्वेश्चन को करने में यूज होगी। if it is left you can again watch the video and you can note it down, is it clear? ठीक है बेटे, note it down। We will start with
13.3. Here is question number 3. Express in standard form. अब एक नंबर गिवन है जिसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. क्वेश्चन 1. Express in standard form. Now given number is 5 with 7 zeros. ये है आपका नंबर. ठीक है, पहले इसको डेसिमल फॉर्म में ले आओ. ओके, डेसिमल फॉर्म में ले आते हैं इसको. इट विल बी 5 with 7 zeros एंड एंड में आपके डेसिमल और जीरो लगा के डेसिमल फॉर्म में बन गया. आप क्या करना है, आपको डेसिमल यहाँ लिखना है. कितने स्टेप्स पीछे आना है? 7 स्टेप्स. दैट मींस 1 के साथ 7 जीरोस लगाओ. उस नंबर के साथ 1 करोड़ के साथ 7 जीरोस लगाते तो 1 करोड़ बन जाता है. उसी नंबर से मल्टीप्लाई करिए और उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए. मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सेम नंबर से. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिवीजन यूज करनी है क्योंकि हमें डेसिमल नंबर फ्रेम करना है. डेसिमल यहाँ है, इस डेसिमल को हमें यहाँ लेके आना है स्टैंडर्ड फॉर्म के कारण, क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ 1 से 10 में हो सकती है. तो मुझे यहाँ लिखूंगी तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी. 5 जब डिवाइड हुआ तो ये क्या बन जाएगा? इस तरह से. ठीक है, अब रिमेनिंग नंबर है सिर्फ ये यूज हो गया. 1 करोड़ जो डिवाइड हो रहा था, दिस आई हैव यूज्ड. इससे मैंने डिवाइड कर दिया तो डेसिमल यहां से यहां पहुंच गया. ठीक है, अब जब यहां पहुंच गया तो मैं 5 जब डेसिमल के बाद जीरो से तो उसको छोड़ देते हैं, जीरो मैंने लिख देती हूं और मेरा आंसर है 170. 5.0 into 10 power 7. इज इट क्लियर? इसको मैं ओनली 5 भी लिख सकती हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डेसिमल नंबर चाहिए. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर 5.0. ठीक है, डेसिमल नंबर अगर इसको आप जैसे बैक साइड में इसका आंसर 5 into 10 power 7 है, दैट इज आल्सो राइट. क्योंकि जब डेसिमल एंड में चला जाता है तो वैल्यू नहीं रहती. तो हमारा जो आंसर है